Hello students, today I am going to discuss you with a special topic of inverse trigonometry, that is simplest form conversion. In this topic, what we have to do? We have to convert a complicated form of an inverse trigonometric function into the simplest form using various methods. In this topic, we will discussing about three methods. Out of these three methods, first method is using trigonometry formulae. As well as inverse trigonometric formulae. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हम ऑलमोस्ट रिमेनिंग टू मेथड्स में भी यूज करेंगे. सेकेंड मेथड होता है हमारा यूजिंग बेसिक सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड मेथड होता है हमारा यूजिंग substitution by using T formulae, that is trigonometric formulae. Okay, now we will first discuss about the first method. In this method हमारा जो first topic है वह है using trigo and inverse trigo ITF formulae. We will discussing about the questions based on this topic. Question number 1 is, if it is given that y is equal to tan inverse 1 minus cos x upon sin x, and we will have to convert it into simplest form, then what we can do? We know the formula of 1 minus cos x. 1 minus cos x का formula होता है, if you remember of class 11th, then you have already studied the formula for 1 minus cos x is 1 minus cos x is equal to 2 sin square x by 2. ठीक है. एंड द फॉर्मूला फॉर sin x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 sin x by 2 cos x by 2. Okay, so we will write here y will be equal to tan inverse 1 minus cos x की जगह हम क्या लिख देंगे 2 sin square x by 2, एंड sin x लिख देंगे हम 2 sin x by 2 cos x by 2. दिस इज द हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ sin x. 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, sin से एक sin कैंसिल हो गया, सो वी विल गेट y इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट sin x by 2 अपॉन cos x by 2, दैट इज tan इनवर्स tan x by 2. ठीक है. अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो वी विल राइट y इक्वल टू x by 2. दिस विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस. ठीक है. एंड इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट, अगर हमारे को क्वेश्चन होगी हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बेटर है कि हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और उसका डिफरेंशिएशन ऑफ y का कर दें. y का डिफरेंशिएशन का 1 by 2. ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है. इज इट क्लियर? Now the next question number 2 is y is equal to tan inverse under root 1 minus cos x upon 1 plus cos x. ओके, अभी हमने 1 minus cos x का फॉर्मूला की बात की थी. 1 minus cos x is equal to 2 sin square x by 2. Also there is a formula for 1 plus cos x. 1 plus cos x is equal to 2 cos square x by 2. Okay, so we will write it as y will be equal to tan inverse under root
2 sin square x by 2 upon 2 cos square x by 2. Therefore we will get tan inverse, 2 and 2 get cancelled, under root tan square x by 2, or root of tan square x by 2 is tan x by 2, so we will write it as tan inverse tan x by 2, and again we will get y is equal to x by 2. This is your answer. Okay. Next, if in place of, here we will write that 1 minus cos x upon 1 plus cos x. By chance 1 plus cos x ऊपर हो और 1 minus cos x नीचे हो तो क्या करेंगे? So our next question is based on this topic, this type of method. Question number 3 is y is equal to same tan inverse under root 1 plus cos x upon 1 minus cos x. So we can write it as y equal to tan inverse under root 1 plus cos x का फॉर्मूला भी मैंने बताया आपको 2 cos square x by 2 एंड 1 माइनस कॉस एक्स का लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था 2 sin square x by 2. So 2 and 2 get cancelled. So we will get here tan inverse under root cot square x by 2, because cos x by 2 upon sin x by 2 is cot x by 2. So we will get here tan inverse cot x by 2. Now what we will do? We can convert this cot theta. You know what is tan 90 minus theta? Tan 90 minus theta is cot theta. पढ़ा है ना ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ते हैं ना 11th क्लास में भी पढ़ते हैं. So if we have written as cot theta, we can write it as tan 90 minus theta. So हम यहाँ पे क्या कर देंगे? It will be tan inverse tan 90 is pi by 2 minus theta is here x by 2. So tan inverse and tan of tan theta is equal to theta, that is pi by 2 minus x by 2. This is the value of y. Okay, this is the simplest form of this question. Okay, understand? Our next question was question number 4. Y is equal to tan inverse cos x plus sin x upon cos x minus sin x. In this question, जब भी हमारे पास इस तरीके से लिखा हो cos x plus sin x upon cos x minus sin x, what we have to do? We take out the cos x common from numerator and denominator both. ठीक है, चाहे प्लस ऊपर हो माइनस नीचे, माइनस ऊपर हो प्लस नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता. So we will write that tan inverse cos x. अगर न्यूमरेटर से मैंने cos x कॉमन लिया तो I will get cos x के प्लेस पे 1 आ गया प्लस sin x अपॉन cos x, बिकॉज जब मैं cos x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो विल गेट cos x प्लस cos x इंटू साइन एक्स अपॉन cos x. cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, sin x आ जाएगा, सेम मिल जाएगा. सेम डिनोमिनेटर से भी मैंने cos x कॉमन ले लिया तो इट विल बिकम 1 माइनस sin x अपॉन cos x. सो cos x एंड cos x गेट कैंसिल्ड, सो वी विल गेट tan इनवर्स 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x. नाउ डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x? या फिर ये किसी का फॉर्मूला है क्या? अगर आप लोगों ने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से किया है तो आपको इसका ये फॉर्मूला पता होगा डेफिनेटली. ठीक है, किसका फॉर्मूला ये? अगर मैं इसे लिखूं तो इट विल बी tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स. इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x. ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला था हमारे पास, और इसी का अगर प्लस की जगह माइनस होता है इट विल बी tan पाई बाय 4 माइनस एक्स. इट विल बी 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x. जस्ट सिंपली, ठीक है, आप लोग अपने आप सॉल्व कर लेना. क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसमें tan a माइनस बी और इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना. यू विल गेट दिस वन. ये फॉर्मूले आपके ड्राइव हो जाएंगे. ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज फॉर क्लास 12th. ओके, नाउ सो वी विल राइट दैट y विल बी इक्वल टू, y क्या हो गया मेरे पास? y will be equal to हो गया मेरे पास tan inverse and in bracket 1 plus tan x upon 1 minus tan x, that is 1 plus tan x upon 1 minus. So we'll write that tan pi by 4 plus x. So we'll get y will be equal to tan inverse से tan हट जाएगा, that will be pi by 4 plus x. This is your answer.
Similarly, next question is question number 5. Let us suppose we have given the question y is equal to tan inverse under root 1 minus sin x upon 1 plus sin x. ठीक है, where x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Do you remember what is the formula for 1 minus sin x और 1 plus sin x? क्या किसी को फॉर्मूला पता है 1 minus sin x का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ये एडवांस लेवल फॉर्मूले हैं. 1 minus sin x इसका फॉर्मूला होता है हमारा. बेसिकली अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो आई कैन राइट 1 minus 2 sin x by 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2. मैंने साइन एक्स का क्या हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. ओके, दिस इज 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2. नाउ आई विल राइट इन प्लेस ऑफ 1 इज, कैन आई राइट साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2? ऐसा लिख सकता हूं मैं. माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2. ओके, क्लियर? सो वी विल गेट हियर इट विल बी साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 होल स्क्वायर. ठीक है, और वी कैन राइट एस कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर. ठीक है, वाई इज इट सो? बिकॉज एक्स हमारा अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है तो एक्स बाय 2 मेरा माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4. और इन दोनों इस पर्टिकुलर इंटरवल में माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 में अगर एक्स बाय 2 बड़ा हुआ तो एक्स बाय 2 जो कॉस एक्स बाय 2 की वैल्यू होती है वो साइन एक्स बाय 2 से बड़ी होती है. ओके, क्लियर? तो और ये भी फॉर्मूला बेसिकली साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 क्यों आया? बिकॉज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो विल गेट 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला मिल गया उनको 1 कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर. सिमिलरली वी कैन गेट द फॉर्मूला फॉर 1 प्लस साइन एक्स. 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वी कैन राइट दिस कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर 1 प्लस साइन एक्स. Now we come to our original question. Now y equal to था हमारा tan inverse under root 1 minus sin x upon 1 plus sin x. That is y equal to tan inverse under root 1 minus sin x की जगह लिख दिया मैंने cos x by 2 minus sin x by 2 whole square. और 1 प्लस साइन एक्स की जगह लिख दिया मैंने कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर. सो विल गेट हियर इट विल बी y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट. अगर आप स्क्वायर से रूट देखोगे तो इट विल बी कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2. ठीक है, सॉरी ये रूट हट जाएगा हमारा अपॉन कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2. ठीक है, एक बार मैं फिर लिख देता हूं. इट विल बी y इक्वल टू tan इनवर्स कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2. अब अगर इसे हम कंपेयर करें लास्ट क्वेश्चन से तो अगेन वी कैन टेक कॉस एक्स बाय 2 कॉमन. सो विल गेट हियर tan इनवर्स. अगर हम cos x बाय 2 कॉमन ले लेते हैं तो इट बिकम्स 1 माइनस tan x बाय 2 एंड नीचे भी cos x बाय 2 कॉमन लिया तो इट बिकम्स 1 प्लस tan x बाय 2. cos x बाय 2 एंड cos x बाय 2 गेट कैंसल्ड.
सो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इज टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा। अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स इट विल बी टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, इट विल बी पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई हेयर। Now our next question is, it is a very very important question as per examination point of view. Question is y is equal to, in bracket we will write that cos x upon 1 plus sin x. अभी मैंने आपको 1 plus sin x का फॉर्मूला डिस्कस कर दिया था। नो cos x का, you know the formula for cos x, half angle formula for cos x. The half angle formula for cos x is cos x is equal to, first formula is cos square x by 2 minus sin square x by 2, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड हेयर। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर, ओके। सो विल राइट हेयर y विल बी इक्वल टू, इन ब्रैकेट, सॉरी बाहर यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में tan इनवर्स लिखा हुआ था, मैं लिखना भूल गया। tan इनवर्स cos x की जगह लिख दिया मैंने cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, एंड इन डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन x की जगह लिख देंगे हम। अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने, cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर, ओके। So we get here y equal to tan इनवर्स, ऊपर वाला फॉर्मूला देता मेरा cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, इसको मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करता हूं। आई विल राइट एज cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 a माइनस b एंड a प्लस b, cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2, एंड इन डिनोमिनेटर आई विल राइट cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से एक ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो विल गेट हियर y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2। और अभी अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ऑलरेडी, ठीक है, सेम जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, विल टेक आउट कॉमन cos x बाय 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर, सो विल गेट 1 माइनस tan x बाय 2 अपॉन अगेन cos x बाय 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan x बाय 2, cos x बाय 2 एंड cos x बाय 2 गेट कैंसल्ड, सो विल गेट tan इनवर्स एंड 1 माइनस tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाय 2 इज tan, ऊपर माइनस है तो पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, सो विल गेट y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स एंड tan हट जाएगा tan ये वाला, तो विल गेट पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। दिस इज योर आंसर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सेम our next question is question number 6. Y will be equal to tan inverse secant x plus tan x. Okay, clear? We can write it as y equal to tan inverse secant x को लिख देंगे 1 upon cos x plus sin x upon cos x. So we'll write that tan inverse 1 plus sin x whole divided by cos x. Now you know the formula of 1 plus sin x as well as cos x का half angle formula cos square x by 2 minus sin square x by 2. So you will do this question yourself. ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर लेना आगे, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, डू योरसेल्फ. Similarly, one more question I will give you. Y equal to
tan inverse secant theta plus 1 upon tan theta. ओके, यू विल ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. ठीक है, सीकेंट थीटा की जगह पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड टेन थीटा की जगह पे लिख देना आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड यू गेट द आंसर इन दैट केस. ओके, डू योरसेल्फ, अगेन डू योरसेल्फ. Next, our next question is 7. Y is equal to sine inverse sin x plus cos x whole divided by root 2. So in this question what we have to do, we will write that y is equal to sine inverse, we can write it like this, 1 by root 2 sin x plus 1 by root 2 cos x. Okay, now you know what 1 by root 2 sin की वैल्यू कब होती है, cos के लिए होती है. You must remember कि sin 45 जो होता है हमारा 1 by root 2 होता है, सेम cos 45 भी 1 by root 2 होता है. तो we will write that it will be sin x cos pi by 4 plus cos x sin pi by 4. ऐसा लिख सकते हैं ना हम इसे, 1 by root 2 को sin pi by 4 भी लिख सकते हैं और 1 by root 2 को cos pi by 4 भी लिख सकते हैं. So we'll get y equal to sin inverse sin a cos b plus cos a sin b, that is sin a plus b, so x plus pi by 4. So we'll get here y will be equal to x plus pi by 4. This is your answer. Similar type of question is also give I will give, do it yourself. Question number 8 is y equal to cos inverse cos x plus sin x upon root 2. ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप करना, ठीक है. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूले. आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी फॉर्मूले पढ़े हुए हैं. वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला था हमारा. इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. बेसिकली आपने ये वाला फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ठीक है, अब हम इस सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्जन में रिवर्स ऑर्डर में यूज करेंगे. हमें ये दिया होगा, हम इस फॉर्म में यूज करेंगे. सेम अनदर फॉर्मूला इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. यू कैन राइट एज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलेज. क्वेश्चन नंबर 1, इफ आई वांट टू कन्वर्ट in simplest form y is equal to tan inverse a plus x upon 1 minus ax. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरे फर्स्ट फॉर्मूला जो था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई से कंपेरेबल है. ठीक है, here a is a constant number, so you can write it as, it will be y will be equal to tan inverse a plus tan inverse x. This is our answer. Okay, our next question is question number 2 of this type. Y equal to tan inverse
रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन 1 प्लस रूट ए इंटू एक्स। तो आप इसे कंपेयर करो तो इट विल बी लाइक दिस, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, बिकॉज रूट ए एक्स को लिख सकता हूँ मैं रूट ए इंटू रूट एक्स या रूट एक्स इंटू रूट ए, कोई फर्क नहीं पड़ता रूट एक्स पहले लिखूं या रूट ए पहले लिखूं। तो इट बिकम्स डायरेक्टली tan इनवर्स रूट एक्स माइनस tan इनवर्स रूट ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगर हमारे को दे रखा हो y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी एक्स अपॉन b माइनस ए एक्स। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास कि यहां पर देखो, अगर मैं इसको फॉर्मूले से कंपेयर करूं x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो यहां 1 नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे 1 करना है, तो 1 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे b को हटाना पड़ेगा, और b को हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, b से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि दोनों जगह बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर b कॉमन ले लेता हूं। अगर मैंने b कॉमन लिया तो इट विल बी tan इनवर्स, ठीक है, मैंने b कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से, तो अंदर क्या बचा a अपॉन b प्लस x। ओके, और डिनोमिनेटर से भी अगर मैंने b कॉमन ले लिया तो इट बिकम्स 1 माइनस a अपॉन b इंटू एक्स। ओके, नाउ दिस b एंड b गेट कैंसल्ड। अगर मैंने b और b को कैंसिल, अब देखो ध्यान से, इट लुक्स लाइक tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। दिख रहा है ना ये? सो अवर आंसर विल बी y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b, x हो गया a अपॉन b प्लस tan इनवर्स x। दिस इज योर आंसर। सिमिलर टाइप ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मेरे को क्वेश्चन दिया हो क्वेश्चन नंबर 4 इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b tan x अपॉन b माइनस a tan x। यू विल सॉल्व इट योर सेल्फ, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। हाँ, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यहां न्यूमरेटर देखूं तो मेरे को अगेन क्या चाहिए, यहां पर फिर से वही x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई जैसा कुछ बन सकता है। तो मैंने क्या किया, यहां पर b cos x जो है इसको ही कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से। तो जिसको मैं डिनोमिनेटर से कॉमन लूंगा ना, उसी को न्यूमरेटर से कॉमन लेना कंपलसरी है। तो अगर मैंने न्यूमरेटर से b cos x कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास बचेगा यहां पर, क्योंकि b नहीं है यहां पर, तो a अपॉन b आ गया, और cos x तो था तो cos x हट जाएगा, माइनस अब b ऑलरेडी था यहां पर तो b तो कॉमन आ गया, sin x अपॉन cos x ऐसा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बस b cos x। अगर मैंने कॉमन लिया तो विल गेट हियर 1 प्लस a sin x अपॉन b cos x। ओके, so what we get here, it will be tan inverse, पहले b cos x को b cos x से कैंसिल कर दिया, and we get a अपॉन b माइनस tan x अपॉन 1 प्लस a अपॉन b इंटू tan x। ओके, क्योंकि a अपॉन b और sin x अपॉन cos x इज tan x, तो it looks like tan inverse x minus y upon 1 plus xy. So we can write it as, it will be tan inverse a by b minus tan inverse y is tan x. अब tan inverse से tan हट जाएगा तो we'll get y will be equal to tan inverse a upon b minus x. This is your answer. Now next question is, similar type of question. Question number, similar type of question. Question number 6. Y is equal to tan inverse x minus a upon x plus a. तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम,
x कॉमन ले लेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर मेरे को 1 प्लस समथिंग चाहिए ना, तो यहां डिनोमिनेटर में x कॉमन लूंगा, न्यूमरेटर में भी x कॉमन लूंगा एंड वी गेट द आंसर. ठीक है, ओके, यू विल ट्राई टू सॉल्व इट. अपने आप करना है इस वाले क्वेश्चन को. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं ऐड कर रहा हूं. ठीक है, जैसे हमारे को दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर. हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. व्हाट वी विल डू हियर, tan इनवर्स, देखो यहां 1 तो दिया हुआ है और 6x स्क्वायर, हम 6 के फैक्टर्स कर लेते हैं. 6 के फैक्टर होते हैं 3 और 2, तो 3x इंटू 2x लिख सकते हैं ना यहां पर. और जो 5x है इसको मैं 3x प्लस 2x लिख सकता हूं. कैन आई राइट लाइक दिस? तो 5x को लिख देना 3x प्लस 2x और नीचे आ गया 1 माइनस 3x इंटू 2x. इस तरीके से कन्वर्जन करना भी हो सकता है हमारे. तो इट लुक्स लाइक tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, बिकॉज 3x इंटू 2x इज 3 2 6, x इंटू x इज x स्क्वायर. सो यू गेट y इक्वल टू tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x. Similar type of question is y equal to tan inverse x अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आप अपने आप करना. ठीक है, डू योर सेल्फ, बिकॉज 1 प्लस है तो इसको अगेन ब्रेक किया मैंने 6x स्क्वायर को 3x इंटू 2x. लेकिन मेरे को ऊपर माइनस में चाहिए तो मैं x को लिख सकता हूं ना 3x माइनस 2x, तो हमारा आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर. ठीक है, वही सेम चीज 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 2x इंटू 2x और इसको लिख देंगे 2x प्लस 2x. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू tan इनवर्स 2a रेज टू पावर x अपॉन 1 माइनस a रेज टू पावर 2x. ठीक है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है. इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, अभी मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, वो सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन है. तो वो दोनों क्वेश्चन में कंपेयर कर लेंगे, इसको सेम तरीके से करेंगे. tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 रेज टू पावर x. हाँ जी, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स x. 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स x. ओके, मीन्स अगर मेरे को ऐसा कुछ लिखा होगा तो मैं उठा के 2 tan इनवर्स लिख सकता हूं. तो इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होना है. बेसिकली क्या होगा हमारा, वी विल राइट दैट y इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 को लिख दूं 2 की पावर x इंटू 2 अपॉन 1 माइनस 2 की पावर 2 की होल पावर x. So what we get here, it will be equal to tan inverse 2, आगे पीछे कर रहा हूं मैं, 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस 2 की पावर की पावर है तो 2x. ठीक है, ओके. नाउ इट लुक्स लाइक, अगर मैं थोड़ी देर के लिए 2 की पावर x को t लेट कर लूं या x लेट कर लूं तो इट विल tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर. तो इट बिकम्स tan इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर. दैट इज 2 tan इनवर्स 2 की पावर x. दिस इज योर आंसर, सिंपलेस्ट. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज to convert into simplest form using basic substitution. Using basic substitution. Now what we have to do in this topic? This is a very important topic. ठीक है, this topic is used in differentiation as well as integration.
ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनमें भी बहुत यूज होता है ये बेसिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दीज सब्स्टिट्यूशन आर नॉट 100% फुल प्रूफ, बट 99% हम इन सब्स्टिट्यूशंस को यूज करते हैं। ठीक है, मैं कुछ फॉर्मूलेज लिखवा रहा हूं आपको कि अगर हमें लिखा हो तो हमें क्या एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हमारी, इफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज गिवन समवेयर इन द क्वेश्चन, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर लिखा होगा तो हम वहां पे क्या करेंगे, विल सब्स्टिट्यूट आइदर एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। ओके, सेकेंड इज, अगर यहीं पे हमारे को ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लिखा हो, ठीक है, आगे पीछे प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में फर्क पड़ता है, तो ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर लिखा हो तो हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। थर्ड, अगर हमारे को एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर लिखा हुआ हो, ठीक है, बिकॉज ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज डिफरेंट थिंग एंड एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज डिफरेंट थिंग, तो इसमें एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा और ए कॉसेक थीटा, कुछ भी यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, फोर्थ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन है अगर हमारे पास ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो, या फिर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो। ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ भी हो तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं बेसिकली। क्या क्या चॉइस है, या तो हम एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करेंगे इफ tan इनवर्स और cot इनवर्स इज गिवन, अगर हमें tan इनवर्स या cot इनवर्स गिवन है तो a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, बट अगर हमारे को बाहर साइन इनवर्स cos इनवर्स इनके अलावा कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखेगा, इनके बाहर जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स cos इनवर्स cot इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स cos इनवर्स सीकेंड इनवर्स और cosec इनवर्स गिवन हो, तो हम x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे इफ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स इज गिवन। ठीक है, और उनके फैमिली मेंबर्स गिवन है, तो क्लियर। फिफ्थ, ओनली हमारे को a माइनस एक्स और a प्लस एक्स ही गिवन हो सिर्फ। ठीक है, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स ओनली ये गिवन हो उस क्वेश्चन के अंदर, तो हम x इज इक्वल टू a कॉस टू थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, सिक्स्थ, अगर हमारे को ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर गिवन हो, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर गिवन हो, तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे इफ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और इनके फैमिली मेंबर कॉसेक इनवर्स सीकेंड इनवर्स अगर गिवन है तो। ठीक है, बट अगर tan इनवर्स या cot इनवर्स गिवन है तो हम x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे a स्क्वायर tan थीटा। ठीक है, इफ tan इनवर्स और cot इनवर्स इज गिवन। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सेवंथ, अगर हमारे पास अंडर रूट a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या फिर अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स गिवन है, तो इस केस में हम एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा ही सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर अंडर रूट में दिया हुआ है तो। ओके, दीज आर द बेसिक सब्स्टिट्यूशंस विच वी हैव टू यूज। ओके, अब इनको थोड़ा और मॉडिफाइड, एक्चुअली हमारे को हमेशा ए नहीं दिया होता, तो ए की जगह पे हमें जनरली 1 दिया होता है, तो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख देता हूं कि अगर हम सब जगह पर x की a की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, a की जगह 1 चेंज कर दें, तो हमारे न्यू फॉर्मूले बन गए। ठीक है, 8th फॉर्मूला आ गया, अगर हमारे को 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है तो x इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू टेन थीटा और कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज गिवन देयर देन x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा और कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स गिवन है तो हम x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे को
1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, या फिर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स गिवन है। तो इसमें हमारे वही दो चॉइसेस हो जाएंगी बेसिकली कि x इज इक्वल टू tan थीटा इफ tan इनवर्स और cot इनवर्स इज गिवन, एंड x इज इक्वल टू tan स्क्वेयर थीटा इफ साइन इनवर्स और cos इनवर्स और sec इनवर्स और cosec इनवर्स इज गिवन। ओके, ठीक है। बाकी के दोनों फॉर्मूले में भी आप जो ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले इनमें भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x इक्वल टू ए टेन थीटा ओनली टेन थीटा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा इफ टेन इनवर्स कॉट इनवर्स गिवन, और x इक्वल टू टेन थीटा इफ साइन इनवर्स कॉस, ठीक है। एंड रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो x इक्वल टू कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, now we are doing the question based on this topic. Now we are doing question number 1 on this topic. Y is equal to tan inverse x upon अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। हमें ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगर हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर अपनी फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशन वाली लिस्ट से चेक करें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में मेरे को आइदर एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हाँ, रिमेंबर वन थिंग, यहां से हम थीटा की वैल्यू जरूर कैलकुलेट करेंगे। तो अगर एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा है तो इट इंप्लाइज आई कैन राइट साइन थीटा विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन ए and theta will be equal to sin inverse x upon a. ओके, ये चीज हमारे को बाद में यूज कर, ओके। नाउ y will be equal to हो गया हमारा tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस, अगर x की जगह a sin थीटा पुट किया तो इट विल बी a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। So we get here it will be tan inverse a sin theta upon under root a square कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड एज यू नो इट वेरी वेल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इट विल बी a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और जब रूट करेंगे डिनोमिनेटर में तो वी विल गेट हियर tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए से ए गेट कैंसल्ड, सो यू गेट इट विल बी tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है। तो y विल बी इक्वल टू हो गया हमारा थीटा, बिकॉज tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, ओके। एंड थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी शुरू में निकाल ली थी, हमारे पास आ गई थी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो हम इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इट इंप्लाइज y will be equal to sin inverse x upon a. This is your answer. Now our next question is question number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमारे को, हाउ टू कैलकुलेट टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल राइट दैट बिकॉज हेयर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसमें एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी नो इट वेरी वेल फ्रॉम द बेसिक सब्स्टिट्यूशन
कि लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। ओके, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो मैंने बताया था आपको कि x इज इक्वल टू ए tan थीटा होता है। तो इट इम्प्लाइज tan थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन a एंड थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। ये बाद के लिए हम निकाल के रख लेते हैं शुरू में। ओके, so our question become y equal to cos inverse a tan theta upon under root a square tan square theta plus a square, that is cos inverse a tan theta upon under root a square कॉमन ले लेंगे, it will comes tan square theta plus 1, and you know it very well from class 10th, tan square theta plus 1 और 1 plus tan square theta is always equal to क्या होता है, that's it, it will be secant square theta। so रूट कर देंगे यहां पर, तो it will comes cos inverse a tan theta upon a secant theta। now a से a कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, tan थीटा को हम लिख देंगे, इट विल बी cos इनवर्स tan थीटा इज रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा, डिनोमिनेटर में sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा। जब रिवर्स होगा तो विल गेट, इट विल बी cos इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन 1, cos थीटा एंड cos थीटा गेट कैंसल्ड, सो विल गेट, इट विल बी cos इनवर्स sin थीटा। ये y की वैल्यू हो गई। बट अब हमारे यहाँ बाहर cos इनवर्स है और अंदर साइन है, तो इस साइन को cos में कन्वर्ट करना है। तो यू नो इट वेरी वेल कि साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा कैन बी, साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं ना मैं ऐसा, cos 90 माइनस थीटा जो होता है मेरा साइन थीटा होता है। सो विल राइट इट एज y विल बी इक्वल टू cos इनवर्स cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। सो y विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू हमने शुरू में निकाल ली थी, क्या थी, करेक्ट, इट वॉज tan इनवर्स x अपॉन a। सो अवर सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट होके आ गई y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, समटाइम्स यू कैन सॉल्व इट फर्दर मोर, बिकॉज अगर आपको ध्यान हो तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, इट विल बी पाई बाय 2। तो अगर मैं tan इनवर्स x को राइट साइड पे ले जाऊं तो cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, और यू कैन से पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू cot इनवर्स x। तो अगर इधर मैं अप्लाई करूं इस फॉर्मूले को तो हियर वी गेट, ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। इसको और मॉडिफाई वर्जन में कभी हमें प्रूव करने के लिए बोला होता है, तो राइट y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू cot इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, अगर प्रूव करने के लिए बोला होगा, और अगर हमें डायरेक्टली भी लाना है ना, तो मैंने बताया था ना, दो सब्स्टिट्यूशंस हैं, x इक्वल टू a tan थीटा और x इक्वल टू a cot थीटा। अगर आप a cot थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर ओनली। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, एज द इन बेसिक सब्स्टिट्यूशन आई विल टेल यू a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, और 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम x को क्या पुट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो इससे हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए करेंगे, सबसे पहले 2 थीटा निकालेंगे। व्हाट इज 2 थीटा, 2 थीटा विल बी cos, उधर चला गया तो cos इनवर्स x, एंड थीटा विल बी इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। इट इज नॉट इक्वल टू cos इनवर्स x by 2, 1/2 या cos इनवर्स x होल डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ओके, रिमेंबर फॉर द लेटर ऑन। सो वी विल सब्स्टिट्यूट इट हेयर, तो y विल बी इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स अंडर रूट
1 minus cos 2 theta होल डिवाइड बाय 2 दैट इज साइन इनवर्स, और आप लोगों को इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 2. 2 से ये 2 कट गया तो इट विल कम साइन इनवर्स साइन थीटा. ठीक है, हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए. 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है. अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर हमारा क्वेश्चन नहीं होगा. जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है बहुत अच्छे से आनी चाहिए. तो इट इम्प्लाइज y विल बी इक्वल टू थीटा, और यू कैन से y इक्वल टू 1/2 cos inverse x. This is your answer. Next question is y equal to sine inverse in bracket root 1 plus x plus root 1 minus x whole divided by 2. ठीक है, आप लोगों को पता है ऑलरेडी 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स के ऐसा मैंने आप लोगों को बता रखा है. एक्स को क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू cos 2 थीटा. इज इट क्लियर? तो इसे हमने थीटा की वैल्यू ऊपर भी निकाली थी, थीटा इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स एक्स आ जाएगा. ठीक है, नाउ वी सब्स्टिट्यूटेड हियर y इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा whole divided by 2. Okay, so we'll get here it will be sine inverse under root 2 cos square theta plus under root 2 sine square theta whole divided by 2. So we get sine inverse root 2 into cos theta plus root 2 into sine theta होल डिवाइड बाय 2. अगर हम इसे सेपरेट करें तो रूट 2 अपॉन 2 इज 1 बाय रूट 2, दैट इज साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा प्लस 1 बाय रूट 2 साइन थीटा. ठीक है, अब बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन सकता है, और बाहर कॉस इनवर्स हो तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है. तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी कैन राइट एज 1 बाय रूट 2 को लिख देता हूं मैं साइन पाई बाय 4 कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाय 4 साइन थीटा. सो इट बिकम्स साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा. साइन वर्स से साइन हट जाएगा तो वी विल गेट y इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स x. दिस इज योर आंसर. Now we are discussing about the third type of the simplest form conversion, that is formula based substitution. ठीक है, जो मैंने आपको बेसिक सब्स्टिट्यूशन बताई ना वो हमेशा फुल प्रूफ नहीं होती. मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो लिखा हुआ है हम एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दें. ठीक है, हमें कुछ जगहों पे ऑब्जर्व करना होता है कि ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें. जैसे अगर मैं इसमें क्वेश्चन लूं y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. अगर आप इसमें देखो तो आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है. अगर मैं x को साइन थीटा पुट कर दूं तो हम पुट कर देते हैं, हमें ऑब्जर्वेशन से अपने आप अप्लाई करना है. तो लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इट इंप्लाइज थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x. ठीक है, विच विल बी यूज्ड in the last. So we'll write it y equal to sine inverse 3 sin theta minus 4 sin cube theta हो जाएगा, because x cube is sin cube theta. So get sin inverse sin 3 theta. sin 3 theta का फॉर्मूला है, तो it is y equal to 3 theta हो जाएगा, sin inverse sin हट जाएगा. तो it implies we say that y equal to 3 और थीटा की जगह हम पुट कर देंगे sin inverse x. This is your answer. Next question is y equal to sine inverse 1 minus
2x square. In this question what we have to do? Again ये कुछ फॉर्मूला मैच करता है cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से. cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड सो ऑन. तो यहां पे हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू अगेन साइन थीटा. इट इंप्लाइज थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x. सो y विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमें ऑलरेडी पता है, फॉर्मूला होता है इट विल बी cos 2 थीटा. अब साइन इनवर्स का cos आ गया तो इस cos को हटाना है, तो वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा. तो cos थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा लिख दे. सो विल राइट इट एज, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, साइन पाई बाय 2 माइनस और एंगल हमारा 2 थीटा है, तो वी विल राइट हियर 2 थीटा. साइन वर्सेस साइन हट जाएगा तो वी विल गेट y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, दैट इज पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x. ठीक है. सेम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम. क्वेश्चन इज y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1. ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्या करेंगे इसके अंदर हम, सीकेंट इनवर्स x, यू नो इट वेरी वेल. सीकेंट इनवर्स x को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 बाय x. ठीक है, तो 1 बाय x मीन्स जो भी हमारा एंगल है इसको रेसिप्रोकल कर दो. तो विल राइट दैट y इक्वल टू cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लेते हैं. तो मैं यहां लिख सकता हूं इट विल बी cos इनवर्स माइनस कॉमन ले लिया तो इट विल बी 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 को 1 प्लस एक्स लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता. इट लुक्स लाइक cos इनवर्स माइनस एक्स. cos इनवर्स माइनस एक्स होता है हमारा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स. तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. ठीक है, अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी हमारे को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी बिकॉज आई नीड 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. मैंने आप लोगों को बताया था अगर आप बेसिक सब्स्टिट्यूशन के पास जाओगे तो आपको इसकी का आंसर मिल जाएगा कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स में अगर cos इनवर्स बाहर लिखा है तो मेरे को x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा पुट करना है. तो वी विल पुट हियर लेट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, x को हम tan स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे. तो इससे थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं. tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट एक्स एंड थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स root x. This is the value of theta. Okay, now we substitute it here. हम substitute कर देते हैं यहां पर. So when we substitute it will be y equal to pi minus cos inverse 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अगर आपको cos 2 थीटा के सारे फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, दैट इज cos इनवर्स cos 2 थीटा. सो वी गेट पाई माइनस 2 थीटा, दैट इज y इक्वल टू पाई माइनस 2 और थीटा की वैल्यू कितनी है बस tan इनवर्स रूट x. This is your answer. Now our next question is y is equal to tan inverse a square x minus x cube upon a cube minus 3a x square. ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है ये शायद tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन यहाँ पे a इन्वॉल्व है तो हम क्या लिखेंगे, लेट x is equal to a tan theta. So it implies tan theta is equal to x upon a and theta will be equal to tan inverse x by a. ठीक है, now we put here it will be y equal to tan inverse 3a square into a tan theta minus a tan theta whole cube upon
a cube minus 3a into a tan theta whole square. So in the next step we will get here tan inverse 3a cube tan theta minus a cube tan cube theta upon a cube minus 3a cube tan square theta. अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से देखें तो a क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो इट विल बी tan इनवर्स a क्यूब कॉमन लेंगे तो इट विल बिकम्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन नीचे से भी a क्यूब कॉमन ले लिया मैंने 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. a क्यूब एंड a क्यूब गेट कैंसिल्ड, सो वी विल गेट हियर tan इनवर्स, और ये जो 3 tan थीटा अपॉन tan क्यूब माइनस tan क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा है, ये हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला है. तो गेट हियर इट विल बी 3 थीटा, तो इट इंप्लाइज y विल बी इक्वल टू 3 tan इनवर्स x अपॉन a. दिस इज योर आंसर. Now I am giving you some questions based on these two topics. ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड सब्स्टिट्यूशन एंड बेसिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, यू विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस. अगर आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एज पर सीबीएसई. ठीक है, बेसिक सब्स्टिट्यूशन समझने में या सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्जन में. ओके, डू फॉलोइंग क्वेश्चंस. Question number 1 is y equal to tan inverse x plus under root 1 plus x square. ठीक है, इसका आंसर है हमारे पास पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स. सॉरी, कॉस नहीं, कॉट है, कॉट इनवर्स एक्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इज y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1 बाय 2 कॉट इनवर्स एक्स. Question number 3, y equal to tan inverse root 1 plus x square minus 1 upon x. आंसर है इसका 1 by 2 tan inverse x. Question number 4, y equal to tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स. इसका आंसर आ जाएगा इस तरह पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2 tan इनवर्स एक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स. आंसर विल बी 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स अपॉन a. क्वेश्चन नंबर 6 इज y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. Its answer will be 1 by 2 sin inverse x upon a. Next question number 7 is y equal to sin inverse x plus under root 1 minus x square whole divided by 2 root 2. Answer will be
π/4 plus sin inverse x. Question number 8. Y equal to sine of 2 tan inverse root 1 minus x upon 1 plus x. Its answer will be under root 1 minus x square. Question number 9. Y equal to cot inverse a upon under root x square minus a square. Answer will be sec inverse x upon a. Question number 10. Y equal to sine inverse 2x root 1 minus x square. Answer will be 2 sine inverse x. Question number 11. Y equal to cos inverse root 1 plus x by 2. Answer will be 1 by 2 cos inverse x. Question number 12. Y equal to tan inverse x upon 1 plus under root 1 minus x square. Answer will be 1 by 2 sine inverse x. Question number 13. Y equal to tan inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Answer will be π/4 minus tan inverse x square. Question number 14. Y equal to sine inverse 1 upon root 1 plus x square. Answer will be cot inverse x. And the last question, question number 15 is y equal to tan inverse root 1 plus x minus root 1 minus x upon root 1 plus x plus root 1 minus x. ठीक है, यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस. अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्जन में. तो ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. ओके, बेस्ट ऑफ लक.